مگر پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جن کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں. وہ کیا ہے جی؟ یہ جون 20 کو ایک نوٹیفیکیشن ڈاکٹر شائستہ سہیل جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی، ان کی طرف سے ایک لیٹر تمام انسٹیٹیوٹس جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے انڈر آتے ہیں ان کو جاری کیا گیا. کیونکہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہولی کی سیلیبریشن ہوئی تھی جس کی تصویریں کافی انٹرنیٹ پہ وائرل ہوئیں. لوگوں کے لیے یہ بہت ہی بڑا سرپرائز ہوگا کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہولی سیلیبریٹ ہو رہی ہے، مگر میرے لیے یہ کوئی سرپرائز کی بات نہیں تھی، کیونکہ جب میں آج سے 15 سال پہلے قائد اعظم یونیورسٹی میں تھا تو یہ ہولی کی سیلیبریشن میں نے کئی بار دیکھی تھی، 2 بار ایٹ لیسٹ، یا اس سے بھی زیادہ، کیونکہ ہم یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد بھی یونیورسٹی جاتے رہتے تھے. تو ہم نے یہ سیلیبریشن دیکھی تھی جہاں پہ ہندو اسٹوڈنٹس رنگ ڈالتے تھے دوسرے اسٹوڈنٹس پہ، منہ پہ ہمارے رنگ کو بھی کوئی لگا دیتا تھا، ٹھیک ہے، وہ کپڑے نہیں خراب کرتے تھے، آپ کے منہ پہ تھوڑا سا رنگ لگا دیتے تھے. اور بہت سے ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس اسپیشل کپڑے اپنے ایسے پہن کے آتے تھے جن میں انہوں نے ہولی سیلیبریٹ کرنی ہوتی تھی، اور ہولی کی ایسی زبردست سیلیبریشن، ڈھول والا بلایا جاتا تھا اور میوزک بجتا تھا اور ایک دوسرے پہ اسٹوڈنٹس رنگ پھینکتے تھے. میرے لیے یہ کوئی نئی اور حیرانگی کی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب یونیورسٹی کی تصویریں ہولی کی ہوئی وائرل تو میں تو یہ چیز دیکھی ہے میں نے خود، اور بڑی پرانی روایت ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آج سے 15 سال پہلے جو ہے وہ پہلی بار ہولی سیلیبریٹ ہو رہی تھی یونیورسٹی کے اندر. نہیں، یونیورسٹی کے اندر 1980s سے ہولی سیلیبریٹ ہوتی تھی، اور ہندو اسٹوڈنٹس ہمیشہ یونیورسٹی میں تھے، میرے ڈپارٹمنٹ میں بھی تھے اور جگہوں پہ بھی تھے. ہر جگہ پہ ہندو اسٹوڈنٹس ہمیں ملتے تھے جو سندھ سے آئے ہوتے تھے، عام طور پہ ساؤتھ پنجاب اور سندھ سے، کیونکہ وہیں پہ پاکستان میں ہندو اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں. سکھ اسٹوڈنٹس بھی تھے ادھر، اور باقی کرسچن اسٹوڈنٹس بھی کافی سارے تھے. احمدیوں کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ عام طور پہ چھپے ہوئے رہتے ہیں. تو بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس موجود تھے جو کہ ان ریلیجن سے تعلق رکھتے تھے. میں تو کچھ پی ایچ ڈی اسکالرس کو بھی جانتا تھا جو کہ ہندو تھے اس ٹائم پہ، اور وہ بڑا اچھا کام کر رہے تھے ادھر، اپنی اسٹڈیز میں مصروف تھے، اور بہت ہی اچھے ملنسار، آپ سے بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیل کرنے والے ہمارے جو پاکستانی ہندو بھائی تھے وہاں پہ تھے، اور وہ زبردست تھا، اور ہولی بھی سیلیبریٹ ہو رہی تھی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب سوشل میڈیا کچھ زیادہ سامنے آ گیا، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اب جیسے ہی اس طرح کی سیلیبریشن کی ویڈیوز جو ہیں اور پکچرز انٹرنیٹ پہ وائرل ہوئیں، اس کے ساتھ ہی مولویوں کو فکر پڑ گئی کہ پتہ نہیں ہمارے تو بچے اگر ہولی سیلیبریٹ کر لیں گے تو یہ ہندو ہو جائیں گے. مطلب ملا کی سوچ اور یہ دقیانوسی، انتہائی شدت پسندانہ سوچ اتنی دقیانوسی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ اسلام میں اگر اسلام کی نظر سے بھی دیکھا جائے تو کسی بھی طرح سے کسی کا ایک دوسرے پر رنگ پھینکنا حرام نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہیں گے نہیں یہ تو ان کے دیوتا کا فیسٹیول ہے تو ہم کیوں سیلیبریٹ کریں. اور میں اس چینل پہ کئی بار پہلے کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی فیسٹیول کسی ریلیجن کا نہیں ہے، سب فیسٹیول آہستہ آہستہ سیکولر فیسٹیول بنتے جا رہے ہیں. عید بھی آج سے 100 سال بعد ایک سیکولر فیسٹیول ہوگی، جیسے کرسمس اور ایسٹر اور نیو ایئر یہ سب کے سب سیکولر فیسٹیول بن چکے ہیں جو کہ پہلے کرسچن فیسٹیولز تھے. ہولی اور دیوالی بھی ایٹ لیسٹ عید سے تو بہت زیادہ سیکولر فیسٹیولز آلریڈی بن چکی ہیں، اور لوگ ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور کسی بھی فیسٹیول کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. کوئی بھی، میں کسی کو کبھی منع نہیں کرتا کہ وہ عید سیلیبریٹ نہ کرے، ہولی سیلیبریٹ نہ کرے. میں عید بھی وش کرتا ہوں، میں ہولی بھی وش کرتا ہوں لوگوں کو، میں کرسمس بھی وش کرتا ہوں، کیونکہ فیسٹیولز لوگوں کے خوش ہونے کے دن ہوتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. لوگ ان ایسے دن ہوتے ہیں جن پہ خاندانوں میں لڑائیاں ہوئی ہوتی ہیں تو لوگ صلح کر لیتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملنا جلنا واپس شروع کر دیتے ہیں. تو یہ لوگوں کو قریب لانے میں مدد دیتے ہیں. اور اگر ایک ریلیجن کے لوگ دوسرے ریلیجن کا فیسٹیول سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور یہ لوگوں کو جوڑتی ہے. اور قائد اعظم یونیورسٹی میں جو ہے ایک طرف ملے بھی ہیں جمعیت جیسے، جمعیت ہمارے وقت میں تو کوئی خاص اسٹرانگ موجود ہی نہیں تھی کیونکہ مشرف کا دور تھا تو مشرف نے کافی ڈنڈا ان کو رکھا ہوا تھا ان کے اوپر. بعد میں زرداری صاحب کا دور تھا تو اس میں بھی کوئی اتنا نہیں تھا. مگر اب مجھے نہیں پتا کہ جمعیت کی کیا سچویشن ہوگی یونیورسٹی کے اندر. مگر ایک طرف یہ ہوتے ہیں تو دوسری طرف سیکولر لوگ ہوتے ہیں. تو سیکولر لوگ، پروفیسرز اور بہت سارے لوگ جو کہ پڑھے لکھے ہیں، جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس چاہے وہ کسی بھی
किसी प्रोविंस से हों, किसी रिलीजन से हों, वो मिलजुल के रहें. तो हाँ, कुछ मुल्ला किस्म के प्रोफेसर्स भी आगे पीछे होते हैं, मगर ज्यादातर यूनिवर्सिटी का माहौल जो है, वो मैंने एक चीज देखी थी कि काफी हद तक जो खास तौर पे सोशल साइंसेस थी, वो बहुत सेकुलर किस्म के लोग थे वहां पे. साइंसेस के अंदर मुल्ला टाइप के लोग कुछ ज्यादा होते थे, मगर सोशल साइंसेस में एंथ्रोपोलॉजी, डीएसएस, इंटरनेशनल रिलेशंस, उधर सारी तरफ जो था काफी लिबरल किस्म का माहौल होता था, और लोग बड़े अच्छे तरीके से आपस में रहते थे. और ऐसा भी नहीं है कि साइंसेज में भी बिल्कुल ही कोई बेड़ा गर्क था, मगर ज्यादातर प्रोफेसर अच्छे थे. कोई एक आधा कहीं किसी डिपार्टमेंट में हो भी सकता है कि जो कि मुल्ला हो, और मुल्ला होते हुए भी कुछ लोग ऐसे थे कि जो ठीक थे, कुछ बुरा नहीं करते थे. हाँ, मगर कुछ ऐसे भी थे कि वो सही नहीं थे. तो ये चीज है, यूनिवर्सिटी का जो माहौल था वो लड़कियों के लिए भी अच्छा था. मैं तो ये कहता हूँ उस टाइम भी अच्छा माहौल था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं कभी बनता था किसी के लिए. कोई इस तरह की इक्का दुक्का कहीं कोई वाकयात कभी कभी रिपोर्ट होते थे, मगर आमतौर पे यूनिवर्सिटी ठीक थी, और नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए भी यूनिवर्सिटी अच्छी थी. कायदे यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बेहतरीन जगह है एजुकेशन हासिल करने के लिए. पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी ऐसा ही नहीं है, बहुत अच्छे क्रीम पाकिस्तान की आती है. तो ये नोटिफिकेशन ये क्या है जी, इस नोटिफिकेशन को हम देखते हैं जरा, क्योंकि इसको देखना जरा थोड़ा जरूरी है कि इसमें लिखा क्या गया. तो ये डॉक्टर शाइस्ता सुहेल है जी, कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऑन कैंपस सेलिब्रेशन ऑफ इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स. ये असल में इसका जो मतन है ना, ये जो पूरी राइटिंग है, ये बड़ी मजाकिया है, ये कॉमेडी है असल में एक हिसाब की. हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन HEIs आर अंडर ALIA responsible for dissemination of knowledge and are essential actors in transforming youth into humane, caring, and cultured individuals. Besides creating a workforce that has skill sets to in accordance with the prioritized needs of the country, and also espouses the culture and moral values as laid down by our religion. तो ये क्या कहते हैं जी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पाकिस्तान में जो एजुकेटेड लोगों की नीड है उसको पूरा करते हैं, और इसके साथ साथ हमारी उन वैल्यूज के सेफ गार्ड भी करते हैं जो कि इस्लाम बताता है. हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैव एन अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी टू पॉलिश एंड नर्चर the exuberance of youth into learned, mature and responsible citizens. तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यूथ को पढ़े लिखे, मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाए, रेडी टू टेक ऑन द रेन्स ऑफ कंट्री एंड प्ले देयर रोल इन नेशन बिल्डिंग. कि वो कल को मुल्क की बागदौड़ संभालें और इसके साथ साथ नेशन बिल्डिंग का काम करें. The public and private sector higher education institutes across the country are consequently relied upon to groom our youth into compassionate, discerning, and refined individuals able to work through life avoiding obvious pitfalls. तो ये क्या कह रहे हैं कि उनको compassionate और बहुत फिक्रमंद ऐसे इंडिविजुअल्स बनाने के लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि ऑब्वियस पिटफॉल्स जो है उनको अवॉइड कर सकें. ठीक है. HEC being cognizant of its responsibility, HEC जो रियलाइज करता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, एज पर द मैंडेट laid down by its ordinance has been formulating policies, guiding principles and priorities for betterment of higher education sector based upon the concepts embodied in our own culture. तो ये जो गाइडलाइंस है उनकी बेस पे और हमारे कल्चर की बेस के ऊपर जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक इसका काम है हायर एजुकेशन कमीशन का कि वो इंस्टीट्यूट्स को गाइड करे, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस और हमारी रवायात को कायम रखे, दस प्रिजर्विंग द नेशंस आइडियोलॉजी, ताकि नेशन की जो आइडियोलॉजी है हमारी, जो टू नेशन थ्योरी है ना, हम उसको प्रिजर्व कर सकें. Unfortunately, it is sad to witness activities that portray a complete disconnect from our socio-cultural values and an erosion of country's Islamic identity. क्या कहते हैं कि हमने ये नोटिस किया है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जिनकी वजह से हमारी सोशियो कल्चरल वैल्यूज जो है वो खतरे में आ गई हैं और इरोड हो रही हैं, यानी वो खत्म हो रही हैं, और हमारी इस्लामिक आइडेंटिटी जो है उसको एक बहुत बड़ा खतरा लाहक हो गया. भाई देखें आप, ये ऐसी को सियानी ये खातून है जिसने ये लिखा, मुझे पता नहीं है कि इन्होंने खुद लिखा भी है या इनको किसी ने लिख के दिया, किसी मौलवी ने लिख के दिया. ठीक है. One such instance that has caused concern was the fervor exhibited in making Hindu festival of
मार्किंग हिंदू फेस्टिवल ऑफ होली के फिर क्या हुआ कि जी हिंदू फेस्टिवल ऑफ होली जो है बड़े जोशो जज्बे से मनाया गया. This widely reported publicized event from the platform of a university has caused concern and has disadvantageously affected the country's image. मतलब लगाओ ऐसे कोई घोंचू किस्म के लोग ऊपर बिठाए हुए हैं इन्होंने, वो कह रही है कि जी होली सेलिब्रेट करने से हमारे कंट्री का इमेज तबाह हो गया जी, एक यूनिवर्सिटी में हमारी होली सेलिब्रेट हो गई है. इसको कोई बताए कि कायदे यूनिवर्सिटी में तो पिछले 40 साल 50 साल से होली सेलिब्रेट हो रही है, आज तुम्हें पता लगा? तुम कैसी हायर एजुकेशन कमीशन की एग्जेक्टिव हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि कायदे यूनिवर्सिटी में या पंजाब यूनिवर्सिटी में होली सेलिब्रेट होती है, सिंध यूनिवर्सिटी में भी होली सेलिब्रेट होती है. जहां जहां हिंदू स्टूडेंट्स होते हैं लोग उनसे सॉलिडारिटी के लिए करते हैं सेलिब्रेट. मैंने आपको बताया है ना कि आज से 15 साल पहले होली सेलिब्रेट होती थी हमारे यहां यूनिवर्सिटी में. उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, वीडियोस नहीं निकलती थी. हाँ, उस टाइम भी पिक्चर्स लेते थे लोग, उस टाइम भी मेरे पास पिक्चर्स भी शायद कहीं पड़ी हों कि जब यूनिवर्सिटी में होली सेलिब्रेट होती थी. मतलब ये ऐसे कोई बेवकूफ लोग हैं, इन गधों को इंचार्ज कौन बना देता है हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर? ये अपॉइंट कैसे हो जाते हैं जिनको पता नहीं होता कि यूनिवर्सिटीज में क्या कल्चर चल रहा है, यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह का मल्टीकल्चरलिज्म का सारा सिस्टम है. मतलब कैसे स्टूपिड लोग हैं ये. जब ब्रिटिश पीएम जो है ना वो क्या करता है, रोजे खोलता है ना, खुलवाता है, इफ्तारियां करवाता है अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, तो तब ये बड़े खुश होते हैं, बड़ा बड़ा फख्र मनाते हैं उस टाइम. ये जब किसी मस्जिद में अजान दे दी जाती है, किसी चर्च में अजान दे लेते हैं जाके, तो पूरा सोशल मीडिया इनका चीखे मार मार के इस्लाम सर बुलंद हो गया, ये कहना शुरू करते हैं. 4 बच्चों ने अगर होली मना लिया तो इनके हालात खराब हो गए. इतने बेवकूफ और जाहिल लोग हैं ये कि बस कोई हद ही नहीं है. अच्छा जी, आगे देखें जी. While there is no denying the fact that cultural, ethnic and religious diversity leads towards an inclusive and tolerant society, कह रहे हैं कि जी कल्चरल यानी माशरती, एथनिक यानी नस्ली और रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है क्या करती है, वो इंक्लूसिव और टॉलरेंट सोसाइटी बनाती है. दैट प्रोफाउंडली रिस्पेक्ट्स ऑल फेथ्स, जो कि सब मजहबों की रिस्पेक्ट करती है, एंड क्रीड्स और सब अकायद की रिस्पेक्ट करती है. अल्बीट इट नीड्स टू बी डन सो इन अ मेजर्ड मैनर विदाउट गोइंग ओवरबोर्ड. यानी हायर एजुकेशन कमीशन में जो बैठे हुए मौलवी हैं उनका नाड़ा ढीला हो गया, उनको लूज मोशन लग गए इस बात से कि जी बहुत ज्यादा जोशो जज्बे से जी होली मना दी गई है. ऐसे नहीं होना चाहिए था, ठीक है, इसको जी इन कंट्रोल रहना चाहिए था, ज्यादा नहीं होना चाहिए था. ये सोशल मीडिया पे क्यों आ गई है भाई? The students need to be apprised to be aware of the self-serving vested interests who use them for their own ends, far from altruistic critical thinking paradigm. मतलब मुझे समझ नहीं आती, ये खातून है शाइस्ता सोहेल साहिबा, मुझे समझ नहीं आती कि ये altruistic critical thinking paradigm जो है वो कैसे मतलब हर्ट हो गया है एक होली मनाने से. कैसे कोई स्टूपिड लोग हैं ये, मतलब क्या हैं ये लोग, किस तरह के बेवकूफ किस्म के मेंटली डम और ज़ोंबी किस्म के लोग हैं ये, जिनको कोई बात समझ नहीं आती. Foregoing in view, it is advised that the higher education institutes may prudently distance themselves, सख्ती से अपने आप को अलहदा करें फ्रॉम ऑल सच एक्टिविटीज, इस तरह की तमाम एक्टिविटीज से, ऑब्वियसली इनकम्पैटिबल विद कंट्रीज आइडेंटिटी एंड सोशल वैल्यूज. यानी जो कि हमारे मुल्क की शनाख्त और हमारी मुआशरती इकदार से हमें दूर कर रही हैं. मतलब होली सेलिब्रेट करना, क्या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू जो हैं उनका होली सेलिब्रेट करना क्या पाकिस्तान के तशख्खुस पे और कल्चरल वैल्यूज के, सोसाइटल वैल्यूज के खिलाफ कोई क्या है? मतलब कैसे है ये औरत ऐसी बातें, ऐसी जाहिलाना बातें सोच भी कैसे सकती है? ठीक है. while ensuring that they rigorously engage their students and faculty in academic pursuits, कह रहे हैं इन कामों को छोड़ के और जी अपने स्टूडेंट्स और अपनी फैकल्टी को एकेडमिक चीजों के अंदर इन्वॉल्व करें बजाय इन चीजों के. इंटेलेक्चुअल डिबेट भी कराने की इनकी जरूरत है. ये तो वहां पे डिबेट भी वो कराएंगे जिसमें इस्लाम की तारीफें हो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है. एंड कॉग्निटिव लर्निंग बिसाइड्स आइडेंटिफाइंग, क्रिएटिंग एंड फॉस्टरिंग एवेन्यूज फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड रैशनल डिस्कोर्स. With profound regards, yours sincerely, Dr. Shaista Sohail,
लगाएं जी, ये किस किस को दी गई है? वाइस चांसलर्स, रेक्टर्स, हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो ये हालात हैं, ये जहालत का लेवल है कि पाकिस्तान की उस कॉम्पिटेंट बॉडी जो कि पाकिस्तान के सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को मॉनिटर करती है, जो उनको गाइडलाइंस देती है, जो उनकी पॉलिसी और डायरेक्शन उनको देती है, उनकी डिग्रीज और उनके प्रोग्राम्स की एक्रीडेशन जिसके हवाले है, उसमें ऐसे मुल्ला किस्म के जाहिल लोग बैठे हैं जिनके लिए यह प्रॉब्लम बना हुआ है कि होली क्यों सेलिब्रेट होगी भाई। ठीक है, क्या मौत आ गई, ये हालात हैं। ये इस तरह मुल्क आगे जाएगा, इस तरह तो भाई आप तो बस फिर इस मुल्क पे कलमा पढ़ लें, इसका जनाजा पढ़ लें, क्योंकि आप तो ये चाहते हैं कि यानी ये बात ऐसी है कि ये कह दिया गया है कि पाकिस्तान में हिंदू लोगों का अपने त्योहार को सेलिब्रेट करना और चंद मुसलमानों का उनके साथ मिलके उनके त्योहार सेलिब्रेट करने से पाकिस्तान का जो कौमी तशख़्ख़ुस है, जिसे नेशनल आइडेंटिटी कहते हैं, वो खतरे में आ जाती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या जहालत का जिंदा मीनार आपने खड़ा कर दिया है, और कैसे जाहिल लोग आपने इन इंस्टीट्यूट्स में भर्ती किए हैं कि उनके अंदर मतलब हद ही कोई हो गई। ये तो ऐसी घटिया बात है जिसके ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए, इतनी बड़ी घटिया बात है। मगर बात यह है कि इसी वजह से तो पाकिस्तान का जनाजा निकला हुआ है, इसीलिए तो आप गटर में पड़े हुए हैं, इसीलिए तो आप कहीं आगे नहीं जा सकते, इसीलिए तो आपका सत्यानाश है। आप इन हायर एजुकेशन, कोई एक भी पाकिस्तान का की यूनिवर्सिटी को कॉलेज दुनिया के पहले 500 इंस्टीट्यूट्स में नहीं आता। ठीक है, उस टाइम कोई कायदे यूनिवर्सिटी को 550 को 650 पे होती थी। ठीक है, अब तो पता नहीं, शायद उससे भी ज्यादा चली गई है बात आगे। कोई आपकी डिग्रीज, आप पायलट्स बनाते हो तो पायलट्स के लाइसेंसेस प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, डॉक्टर्स के वो खत्म हो जाते हैं। आप लोगों को एजुकेट करके पाकिस्तान से भेजते हो तो उनका सत्यानाश, बाहर जाके वो कुछ कर नहीं सकते। रिसर्च आप किसी लेवल की जो है ना कर नहीं सकते हो पाकिस्तान के अंदर, क्या कर रहे हो यार। ठीक है, जो एक आधा इंस्टीट्यूट को कायदे यूनिवर्सिटी जैसा रह गया जहां पे कोई एक नॉमिनल लेवल की एजुकेशन दी जाती है, आप उसको भी तबाह करने के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटियां नहीं है, मदरसे बन जाएं, कायदे आजम मदरसा आप बनाना चाहते हैं कायदे आजम यूनिवर्सिटी को, आप पंजाब यूनिवर्सिटी को पंजाब मदरसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, और तो फिर उधर मौलवी बिठा के और फिर मौलवियों से वही गंद मचवाना चाहते हैं जो मदरसों में बच्चों के साथ करते हैं। ठीक है, आपने इस्लामियत तक इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ानी शुरू कर दिया इस टाइम। आप पीएचडी के स्टूडेंट्स को ये लोग गधे इस्लामियत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपने पीएचडी के स्कॉलर के पास टाइम होगा कि वो इस्लामियत पढ़े, मास्टर्स के स्टूडेंट के पास टाइम होगा कि वो इस्लामियत पढ़े, और अगर आप उसे पीछे 14 साल में इस्लामियत नहीं पढ़ा सके तो अब आपने 2 साल उसको क्या कोई ऊपर से नीचे से इंजेक्शन लगा के उसे इस्लामियत पढ़ानी है अब दोबारा से। तो ये हालात हैं। इस्लामियात के टीचर तो इतने टॉक्सिक होते हैं, हमेशा जिधर ये घुस जाएं, सबसे ज्यादा स्कूल में बच्चों को मारने वाले, बुरे तरीके से जख्मी करने वाले इस्लामियात के टीचर होते थे हमेशा। अब आपने यही मुल्ले इन यूनिवर्सिटियों में घुसा दिए हैं ताकि जमीयत की जो गई सही कसर है वो भी निकल जाए। तो ये बात है, पाकिस्तान के एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को संसार कर रहे हैं, उसको रजम कर रहे हैं नंगा करके मौलवी लोग। ठीक है, और यही इस तरह के लोग ही प्रोड्यूस करेंगे। जितना पाकिस्तान में कोई होता है वो पाकिस्तान से चला जाता है इसलिए क्योंकि उसको भी पता है कि यार इधर तो कुछ नहीं होना। जो आप यूथ निकाल भी रहे हैं पढ़ा के, उनको ना जॉब मिलती है ना कुछ मिलता है, सत्यानाश आप उनका करते हैं। पहले ही कायदे यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज का इन्होंने सत्यानाश किया जानबूझ के, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज का जानबूझ के पाकिस्तान में सत्यानाश किया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी, कायदे यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी, कोयटा यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस जो गवर्नमेंट रन थे, उनका बहुत जबरदस्त स्टैंडर्ड था आज से 20-25 साल पहले, मगर जानबूझ के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के चक्कर में उनको तबाह किया गया। और अब रही सही कसर उनको मुल्ला बना के ना फिर करेंगे, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो खोलता है ना फिर वो पूरा बदमाश होता है, उसके पास जमीयत जाके कुछ नहीं कर सकती, वो जमीयत को भी खटिया खड़ी कर देगा, क्योंकि वो तो जनरलों कर्नलों ने और इन्होंने खोली हुई है ना पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज,
जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर तो वो घुसे हुए हैं, उधर मुल्ले की थोड़ी कुछ चलनी है। तो जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज है, जब तक ये उन्हें तबाह नहीं करेंगे तब तक ये कैसे पैसे कमाएंगे उधर से। इसको आप बना दो मदरसा कायदे यूनिवर्सिटी को, जब ये मदरसा बन जाएगी तो फिर आप बैरिया में पढ़ाओ, फिर आप और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाओ और वहां से पैसे कमाओ। ये तमाशा है सारे का सारा, लोगों को लूटने का तमाशा है, ये सब का सब जलील करने का तमाशा है, ताकि किसी को भी इंसानों जैसी एजुकेशन ना मिले। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती किसी स्टूडेंट के लिए अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए। दुनिया बहुत बेहतरीन किस्म के प्रोफेसर और सब कुछ कायदे यूनिवर्सिटी में फैकल्टी बैठी हुई है, मगर उनके काम करने में भी मुल्ला रुकावट है। ऊपर से हायर एजुकेशन कमीशन में भी आप मुल्लों जैसे खबीस लोग घुसा दें ताकि वो यही गंद डालते रहें जो वो हमेशा करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।